नमस्कार टाइम एटाলৈ स्वागतम मैं अभिलाष और लै आहिছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত অখিল গগৈৰ বিকট চিঞৰ ৰাজ্যপালৰ সন্মুখতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অখিল গগৈয়ে বিধানসভাৰ দ্বিতীয় দিনৰ বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সদনৰ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে অখিল গগৈয়ে বিকট চিঞৰ মাৰি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো জনাই আছো টাইম 8 বিগ ব্ৰেকিং ডাঙৰ খবৰ বিধানসভাত অখিল গগৈৰ বিকট চিঞৰ বিধানসভাৰ দ্বিতীয় দিনৰ অধিৱেশনৰ দিনটোতেই বা আৰম্ভণিতেই উত্তপ্ত হৈ পৰিছে সদন ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ মাজতে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ উত্তাল সদন সিলিন্ডাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে সদনৰ অখিল গগৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাজ্যপালে ভাষণ দি থকাৰ সময়তেই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে অখিল গগৈ বিধানসভাত অখিল গগৈৰ বিকট চিঞৰ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি অসম বিধানসভাৰ দ্বিতীয়টো দিন আছিল আৰু দ্বিতীয়টো দিনৰ আৰম্ভণিতেই ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ মাজতে অখিল গগৈয়ে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যপালে বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াই আছিল মূল্য বৃদ্ধিক লৈ বা বৰ্তমান সময়ত যে ইকনমিক ক্ৰাইচিছ হৈছে তাক লৈ ৰাজ্যপালে কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছিল ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকল চলাব লাগে বুলি কৈছিল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মন্তব্য আগবঢ়াই আছিল আৰু সেই সময়তে অখিল গগৈয়ে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে সিলিন্ডাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে সদন আৰু অখিল গগৈয়ে ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ মাজতে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যপালৰ ভাষণ চলি থকাৰ সময়তেই অখিল গগৈয়ে বিকট চিঞৰ মাৰিছে বিকট চিঞৰ মাৰি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন আছিল আৰু দ্বিতীয়টো দিনৰ আৰম্ভণিতে ৰাজ্যপালে ভাষণ দিয়াৰ সময়তেই অখিল গগৈ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যপালে ভাষণ দি থকাৰ সময়তেই হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অখিল গগৈ পুনৰ উত্তাল কৰি তুলিছে সদন বিকট চিঞৰ মৰা শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যপালে ভাষণ দি থকাৰ সময়তেই পৰিস্থিতি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে অখিল গগৈ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ অখিল গগৈয়ে কেতবোৰ মন্তব্য কৰে বা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি ৰাজ্যপালে বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়াই আছিল ৰাজ্যপালে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ ৰাজ্যপালে বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ নাটনিক লৈ বা ইন্ধনৰ যে নাটনি হৈছে তাক লৈ কেনেদৰে আমি চলিব লাগে সেই সকলো ক্ষেত্ৰত ভাষণ দি আছিল মন্তব্য আগবঢ়াই আছিল আৰু তাৰ মাজতেই মূল্য বৃদ্ধিক লৈ অখিল গগৈয়ে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে বা বিকট চিঞৰ মৰা শুনিবলৈ পোৱা গৈছে অখিল গগৈ ৰাজ্যপালে ভাষণ দি থকাৰ মাজতেই অখিল গগৈয়ে বিকট চিঞৰ মাৰিছে আৰু মূল্য বৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অসম বিধানসভাৰ দ্বিতীয়টো দিনা বা অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনাই অখিল গগৈ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে অখিল গগৈ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে অখিল গগৈ হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যপালে ভাষণ দি থকাৰ সময়তেই এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে অখিল গগৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসম বিধানসভাৰ আজি অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন আৰু দ্বিতীয়টো দিনৰ আৰম্ভণিতেই অখিল গগৈয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছে আমাৰ ওচৰত অখিল গগৈৰ সেই দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছো इस विधेयक को प्रस्तुत करने का में ही इस विधेयक को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया यह सामाजिक सद्भाव न्यायिक लैंगिक समानता और आधुनिक प्रगतिशील समाज को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता लगातार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दृष्टिकोण और शासन का समर्थन कर रही है इस चुनाव में पूर्व निर्वाचन प्रबंधन ने 126 में से अभूतपूर्व 102 सीटें प्राप्त की जो सरकार के प्रति जनता के अपार समर्थन को दर्शाता है यह जनादेश पिछले 10 वर्षों में अपनाई गई शांति आर्थिक स्थिरता और समावेशी विकास की नीतियों के प्रति जन समर्थन का प्रतिबिंब है शांति स्थापना के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रही हैं आज सशस्त्र बल अधिनियम केवल 35 में से 3 जिलों को छोड़कर
अधिकांश क्षेत्रों से हटा लिया गया है। कई शांति समझौते एवं समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं और 10,000 से अधिक उग्रवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं। ये उपलब्धियां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सक्रिय सहयोग और मार्गदर्शन से हासिल हो सकी है। असम की जनता की ओर से मैं उनके प्रति हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मैं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम से अपील करता हूँ, जो इस शांति प्रक्रिया से बाहर रहने वाला एकमात्र प्रमुख संगठन है, कि वे मुख्यधारा में शामिल होकर असम के विकास एवं प्रगति में अपना योगदान दें। राज्य ने आर्थिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। पिछले 5 वर्षों में असम का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 16% की वार्षिक वृद्धि विकास दर से बढ़ा है। असम वर्ष 2028-29 तक 10 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय पिछले कुछ वर्षों में 2 गुना से अधिक हो गई। पूंजीगत वर्ष 2021-22 में 13,502 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 26,531 करोड़ रुपए हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश में इस बड़ी वृद्धि के बावजूद राज्य ने ऋण GSDP को अनुपात को 25% से नीचे बनाए रखा है, जो अनुमत 32% से की सीमा के भीतर है। असम भारत सरकार की विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना तथा केंद्र और मजबूती बनी हुई है, परंतु राष्ट्रीय और वैश्विक परिस्थितियां सतर्कता एवं जिम्मेदारी की मांग करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मितव्यता एवं विवेकपूर्ण आर्थिक व्यवहार के लिए किए गए राष्ट्रीय आह्वान के अनुरूप मैं जनता से अपील करता हूं कि वे कुछ समय तक अनावश्यक खर्चों, अत्यधिक स्वर्ण खरीद कर न तथा गैर आवश्यक विदेशी यात्राओं से परहेज करें, क्योंकि इससे देश की विदेशी मुद्रास्फीति प्रभावित हो सकती है। सामूहिक जिम्मेदारी और विवेकपूर्ण आर्थिक आचरण इस चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्र को सशक्त बनाएगा। माननीय सदस्यगण, पड़ोसी देश से होने वाले अवैध घुसपैठ लंबे समय से असम और राष्ट्र दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कई हिस्सों, विशेषकर पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में बाड़बंदी न होने के कारण घुसपैठ रोकने के प्रबाधित रही है। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार द्वारा सीमा बाड़बंदी हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण एवं स्वागत योग्य है। इससे भारत बांग्लादेश के शेष हिस्सों में बाड़बंदी कार्य को तेजी मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सरकारें अब केंद्र, असम और पश्चिम बंगाल में समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं। इस दीर्घकालिक चुनाव से निपटने के लिए अब एक मजबूत एवं एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों सहित सीमा बाड़बंदी का कार्य पूरा होने से सीमा प्रबंधन और अधिक सुदृढ़ होगा तथा घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। मेरी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के व्यापक हित में भारत सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित करने और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के साथ साथ मेरी सरकार सद्भाव, समानता और साझा सभ्यगत मूल्यों पर आधारित बृहत्तर असमिया समाज के पुनर्निर्माण तथा उसके सशक्तिकरण के प्रति अपने प्रतिबद्ध प्रयास निरंतर जारी रखेगी। यह दृष्टिकोण महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के शाश्वत आदर्शों से प्रेरित है, जिन्होंने विभिन्न समुदायों और जनजातियों के बीच एकता के बीज हुए तथा समानता, आध्यात्मिक मानवतावाद और सामूहिक पहचान पर आधारित एक समावेशी एवं जाति विहीन असमिया समाज की अस्थायी नींव रखी। उन्हें हमारी सभ्यता के आंतरिक स्वरूप और उसके मूलभूत ताने पर में ही इस विधेयक को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। यह सामाजिक सद्भाव, न्यायिक, लैंगिक समानता और आधुनिक प्रगतिशील समाज को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता लगातार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दृष्टिकोण और शासन का समर्थन कर रही है। इस चुनाव में पूर्व निर्वाचन प्रबंधन ने 126 में से अभूतपूर्व
102 सीटें प्राप्त की, जो सरकार के प्रति जनता के अपार समर्थन को दर्शाता है। यह जनादेश पिछले 10 वर्षों में अपनाई गई शांति, आर्थिक स्थिरता और समावेशी विकास की नीतियों के प्रति जन समर्थन का प्रतिबिंब है। शांति स्थापना के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रही हैं। आज सशस्त्र बल अधिनियम केवल 35 में से 3 जिलों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों से हटा लिया गया। कई शांति समझौते एवं समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं और 10,000 से अधिक उग्रवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं। ये उपलब्धियां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सक्रिय सहयोग और मार्गदर्शन से हासिल हो सकी है। असम की जनता की ओर से मैं उनके प्रति हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मैं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम से अपील करता हूं, जो इस शांति प्रक्रिया से बाहर रहने वाला एकमात्र प्रमुख संगठन है, कि वे मुख्यधारा में शामिल होकर असम के विकास एवं प्रगति में अपना योगदान दें। राज्य ने आर्थिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। पिछले 5 वर्षों में असम का सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 16% की वार्षिक वृद्धि विकास दर से बढ़ा है। असम वर्ष 2028-29 तक 10 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय पिछले कुछ वर्षों में 2 गुना से अधिक हो गई। पूंजीगत वर्ष 2021-22 में 13,502 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 26,531 करोड़ रुपए हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि निवेश में इस बड़ी वृद्धि के बावजूद राज्य ने ऋण GSDP को अनुपात को 25% से नीचे बनाए रखा, जो अनुमत 32% से की सीमा के भीतर है। असम भारत सरकार की विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना तथा केंद्र और मजबूती बनी हुई है, परंतु राष्ट्रीय और वैश्विक परिस्थितियां सतर्कता एवं जिम्मेदारी की मांग करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मितव्यता एवं विवेकपूर्ण आर्थिक व्यवहार के लिए किए गए राष्ट्रीय आह्वान के अनुरूप मैं जनता से अपील करता हूं कि वे कुछ समय तक अनावश्यक खर्चों, अत्यधिक स्वर्ण खरीद कर न तथा गैर आवश्यक विदेशी यात्राओं से परहेज करें।